And our top focus, a big development coming in from Delhi as Delhi police has arrested Uday Bhanu Chib, the national president of the Indian Youth Congress. Police may produce him before a court any time now. Breaking news coming in from sources, Delhi police has arrested Uday Bhanu Chib, the national president of the Indian Youth Congress. Sources say that the Delhi police will produce him in court shortly. More details are awaited. The Youth Congress President Uday Bhanu Chib was summoned by the Delhi police to the Tilak Marg police station for questioning yesterday. After a lengthy interrogation, the Delhi police arrested Chib. Police claim that Uday Bhanu possessed all information regarding the protest or that the IYC president played a key role in planning the protest. During interrogation, Uday Bhanu did not cooperate with the police. He either denied most of the questions or attempted to evade them. The police have found sufficient evidence against him which led to the arrest. The police will now present Uday Bhanu Chib in court and present their arguments regarding his role. Police sources say that police remand will be sought for Uday Bhanu. Well, big development coming in. The Congress shirtless protest row. 8th arrest made by Delhi police. And this time, the Youth Congress President Uday Bhanu Chib has been arrested. Sources are telling us that during the interrogation yesterday, it was revealed that Uday Bhanu knew about the protest. He knew about the planning. He planned the protest and he played a key role in executing the shirtless protest at AI Impact Summit by Congress youth workers. Delhi's police is also claiming that during the interrogation, Uday Bhanu did not cooperate and repeatedly avoided key questions about the protest. After grilling him yesterday, Delhi police has now arrested Uday Bhanu in relation with the Congress protest. I'm being joined by my colleague Vivek Sharma as well for more on this. Vivek, 8वां अरेस्ट हो चुका है और इतनी बड़ी डेवलपमेंट है ये। कांग्रेस यूथ के जो प्रेसिडेंट है उदय भानु, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत उनके साथ लंबी पूछताछ करी गई थी कल और उस पूछताछ के बाद अब उनका अरेस्ट हो गया है। देखिए, बात की जाए तो तकरीबन 20 घंटे की पूछताछ के बाद उदय भानु को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास वो पुलिस की पूछताछ में शामिल होने के लिए आए थे। लगातार उनसे पूछताछ का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। सूत्रों का ये कहना है कि उदय भानु सवालों के जवाब में टालमटोल करते हुए नजर आए। उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। पुख्ता सबूत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, जहाँ पे पुलिस उनकी रिमांड की मांग कर सकती है और रिमांड लेने के बाद पुलिस उनसे कई सवालों के जवाब और लेने वाली है। इस मामले में आपको बता दूं कि अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें उदय भानु भी शामिल है। जब ये प्रोटेस्ट हुआ था यानी कि 20 तारीख को भारत मंडपम में जब एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, तो उस वक्त मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद लगातार पूछताछ का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। सोमवार को 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक कार को भी बरामद किया गया, जो कि बिहार नंबर की थी। बताया जा रहा है कि उसमें जो प्रोटेस्ट का सामान था वो रखा गया था। तो कार बरामद की गई और तकरीबन 7 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब उदय भानु को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस मामले में टोटल 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आने वाले समय में पुलिस सूत्रों का कहना है कि कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव हो सकती है। तिलक मार्ग थाने की आप तस्वीरें अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और एहतियात के तौर पर पटियाला हाउस कोर्ट की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहाँ भी आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी के चलते जो है पूरी एहतियात दिल्ली पुलिस बरतती हुई नजर आ रही है। उदय भानु को मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाने वाला है, जहां पर पुलिस उनकी रिमांड की मांग कर सकती है। तो लगातार देखा जा रहा है कि इस मामले में पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। कई जगहों पर रेड का सिलसिला भी जारी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश की, दिल्ली की कई इलाकों पर रेड्स की गई थी और जो अभी टोटल 7-8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे पूछताछ जो है वो भी की गई है। तो कई अहम सबूत जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर लगातार जाँच जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। विवेक, हमें
विवेक, हमें ये बताया जा रहा है कि जब उनसे पूछताछ करी जा रही थी तो ये भी सामने आया था कि उन्हें इस पूरे प्रोटेस्ट, जो शर्टलेस प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस वर्कर्स ने एआई समिट पे करा था, उन्हें उसके बारे में पूरा उनको पता था कि प्रोटेस्ट होने वाला है और वो इन्वॉल्व भी थे कि वो उन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा समिट के दौरान। देखिए, सूत्रों का ये कहना है कि जांच में निकल के सामने आया कि उदय भानु को पूरी तरह से जानकारी थी कि कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करने वाले हैं और पूरी प्लानिंग में वो शामिल भी रहे थे। उनसे कई सवाल जवाब जो है इसी को लेकर किए गए थे, लेकिन वो जवाब जो है वो देते हुए ठीक से नज़र नहीं है, लगातार टालमटोल करते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस का कहना है कि पुख्ता सबूत होने के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, जहाँ उनकी रिमांड की मांग की जाएगी और उसके बाद उनकी रिमांड के बाद जो है पूछताछ का सिलसिला और आगे चलने वाला है। तो साफ है कि उदय भानु की अहम रोल जो है इस पूरे प्रोटेस्ट में नजर आ रहा है, उसी के चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब और सबूतों को जुटाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस लगी हुई है और इनसे पूछताछ करने वाली है कि आखिरकार इसके बारे में जो ये प्रोटेस्ट हुआ था किस किस को जानकारी थी। तो कड़ियों का सिलसिला जोड़ा जा रहा है और आने वाले समय में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे पास लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। उदय भानु पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुके हैं। द विजुअल्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ व्यूअर्स। उदय भानु हैज रीच्ड द पटियाला हाउस कोर्ट as we speak. He's the 8th arrest made in connection with the Congress shirtless protest at the AI Impact Summit. Now the president, the chief of the Youth Congress, has been arrested. विवेक, ये जो हमें खबर आ रही है कि अब 8 अरेस्ट हो चुके हैं, क्या दिल्ली पुलिस और लोगों के लिए क्या मैनहंट अभी भी जारी है? बाकी लोग, क्या हम इससे और गिरफ्तारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। जिनके लोगों के भी नाम सामने आएंगे जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई जगहों पर रेड का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि जब ये प्रोटेस्ट हुआ था उस दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और आज उदय भानु को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुल 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और लोग कौन कौन इस प्रोटेस्ट में शामिल थे उनकी पहचान की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जो भी इस साजिश में शामिल रहा होगा उससे भी पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा। अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही जो कार थी जिसमें इस सारे सामान को रखा गया था, यानी कि प्रोटेस्ट की सामग्री को जिस कार में रखा गया था, उसे हिमाचल सदन से सोमवार को दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया था। तो अब लगातार उदय भानु से पूछताछ की जाने वाली है। सूत्रों का कहना है कि उदय भानु की कोर्ट में रिमांड की मांग की जाएगी और जब रिमांड मिल जाएगी तो उससे लगातार सवाल जवाब जो है वो किए जाएंगे। तो साफ है कि लगातार दिल्ली पुलिस जो है अपनी जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। दिल्ली पुलिस की कई यूनिट इस केस में लगी हुई है और वो लगातार कई जगह पर रेड भी करती हुई नजर आ रही है। तो उदय भानु से पूछताछ की जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि आखिरकार किन और लोगों के नाम सामने आते हैं, किन लोगों को इस पूरी साजिश के बारे में जानकारी थी, कैसे कैसे प्लानिंग रची गई थी। ये सभी कड़ियाँ जो है वो जोड़ी जाएगी, क्योंकि सूत्रों का ये कहना है कि उदय भानु को पूरी तरह से पता था कि एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे और अंदर किस तरह से घुसेंगे, वो सब प्लानिंग की जानकारी उदय भानु को थी। तो साफ है कि अब आने वाले समय में उदय भानु की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। विवेक, जैसा कि हमें पता पड़ रहा है, इस जो प्रोटेस्ट हुआ था कांग्रेस का यूथ वर्कर का, उसके बाद से काफ़ी लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई इसके अगेंस्ट कि इस समय जब देश के, जब पूरी दुनिया से लीडर्स आए हुए थे, उस समय इस तरीके का प्रोटेस्ट करना सही नहीं था। उसने हमारे देश को एक अजीब पोजीशन में रख दिया था। अब बीजेपी अपना अमाउंट, जो उनका अटैक है, उन्होंने माउंट करा है और वो कह रही हैं कि ये जो कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने करा है वो बिल्कुल गलत है। पुलिस ने इनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करी, उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे और भी बहुत सारे सीरियस चार्जेस लगे हैं इनके खिलाफ। तो अगर इन्हें रिमांड मिल जाती है तो क्या हम सजा इनके अगेंस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
देखिए, बात की जाए तो अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। इनकी रिमांड मिलती है तो इनसे पूछताछ की जाने वाली है। इसके बाद आगे का प्रोसेस जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया था तो बीजेपी ने ये कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हिंदुस्तान की छवि खराब करने की कोशिश जो है वो की गई है। कांग्रेस की एक बड़ी साजिश यहाँ पर नजर आ रही है। तो दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में केस दर्ज किया था। इसमें आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी केस दर्ज किया गया था। उसके साथ ही कई और संगीन धारा जो है वो ऐड की गई थी। तो लगातार देखा जा रहा था इस मामले में लगातार दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला गया था। पहले शुरुआत में 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। सोमवार को 3 लोग गिरफ्तार किए गए और अब उदय भानु को गिरफ्तार कर लिया गया है। आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां भी होनी संभव है और ये भी आशंका लगाई जा रही है कि उदय भानु की गिरफ्तारी के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस को तिलक मार्ग थाने और साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट में तैनात किया गया है और आरिफ की कंपनी को भी वहाँ पे मौके पे मौजूद किया गया है। वो भी हर जगह पर निगरानी रख रही है। तो साफ है कि कोई भी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना कर सके, कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट ना हो सके, इसको देखते हुए पुलिस के द्वारा एहतियात कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। Well, the latest that we are coming in, viewers who are joining us right now, the Youth Congress President Uday Bhanu has been arrested. Sources say that after the interrogation yesterday, 20 hours of interrogation, today Uday Bhanu has been arrested. Delhi police sources are claiming that he did not cooperate with the interrogation and he tried to evade some key questions as well, and that now he's being produced in Patiala House Court. His medical examination has been done and now police is going to seek a remand for Uday Bhanu. It's the 8th arrest in the case. Big development coming in from the national capital as Delhi police is tightening its noose on the Congress youth workers who are protesting at the AI Impact Summit. The shirtless protest stunt by the Youth Congress now under serious scrutiny as the chief of the Youth Congress has now been arrested. भानु जी कुछ कहना चाहेंगे इस अरेस्टिंग पर? विवेक शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ इस ब्रॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए. वी ऑल्सो हैव सम रिएक्शंस कमिंग इन फ्रॉम द बीजेपी. लेट्स लिसन इन. राहुल गांधी जी, आपके कार्यकर्ता ये बब्बर शेर नहीं, ये नेशनल शेम है. इन्होंने एक शर्टलेस टॉपलेस एक्ट नहीं, शेमलेस, कैरेक्टरलेस और लॉयल्टीलेस एक्ट किया है. बीजेपी के विरोध में उतरते उतरते देश के विरोध में उतर गए. परंतु आप ऐसे लोगों का डिफेंड कर रहे हैं जिसको खुद कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मार्गरेट आल्वा जैसे लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे. आपके अलायंस पार्टनर्स ने भी कहा कि ये कृत्य गलत है. समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव सेना, पर आप आज भी ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं. बहुत जल्द आप एलाइलेस भी बन जाएंगे और वोटरलेस भी. एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी ही इस पूरे कृत्य के सरगना है, मास्टरमाइंड है. उन्होंने ही तो इन लोगों को ट्रेन करके भेजा है, क्योंकि जिस प्रकार से वो खुद विदेशी धरती पर जाते हैं और भारत की बदनामी करते हैं, इकॉनमी को डेड बोलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर बोलते हैं, कोविड वैक्सीन के ऊपर सवाल खड़े करते हैं और हमारे वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े करते हैं, तो राहुल गांधी ही इन शर्टलेस शेमलेस कार्यकर्ताओं के असली मेंटोर है. That was a quick reaction from the BJP as big development unfolding in the Congress AI Summit protest stunt. The chief of Youth Congress, Uday Bhanu Chib, has now been arrested. Delhi police is now producing him in court right now and might seek his remand as well. According to sources, Uday Bhanu Chib was summoned by the Delhi police to the Tilak Marg police station for questioning yesterday. After a lengthy interrogation, the Delhi police has now arrested Uday Bhanu Chib. Police claim that Uday Bhanu possessed all the information regarding the shirtless protest at the AI Impact Summit, and he also played a key role in planning the protest. During interrogation, Uday Bhanu did not cooperate with the Delhi police. He either denied most of the questions or attempted to evade them. After being grilled for 20 hours by Delhi police,
Major action has now been taken. He has been arrested and now is being produced in court. The police have found sufficient evidence against him, which led to the arrest. Now we have Pawan Khera's reaction also coming in on Uday Bhanu's arrest. Let's listen in. बहुत शर्म की बात है कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको परेशानी होती है, तानाशाह को परेशानी होती है। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल डाल देगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुलवामा के आतंकी सारे गिरफ्तार हो गए? क्या पहलगाम हमले के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? क्या लाल किले ब्लास्ट के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? एक टी शर्ट उतारने से आप इतना डर जाते हो, देश में आतंकी हमले हो जाते हैं और आप गिरफ्तारी नहीं कर पाते हो। ये इस सरकार की असलियत है।